English diary present active and passive voice rule examples in past simple. Past simple tense. We are elaborating past simple rules, definition and examples here. एक्टिव से पैसिव में टेंसेस को चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. Here are some rules. We need an object to make passive sentences. पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है. An object must be a transitive object. When the importance of work or the importance of object increases in the sentence, then the passive voice is made. जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस या काम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और सब्जेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं रहती, या हम सब्जेक्ट के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, या हम अपने डूअर ऑफ एन एक्शन को छुपाना चाहते हैं, सो वी मेक पैसिव वॉइस. द थर्ड वन इज़ सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है. द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन ऑल पैसिव सेंटेंसेस. हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है. नाउ लुक एट द पास्ट सिंपल टेंस इन पैसिव वॉइस. In past simple, this structure is used to convert sentences from active to passive voice. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करनी पड़ती है. लेट्स सी. सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव वॉइस का पास्ट सिंपल में स्ट्रक्चर है. व्हेन यू आर गोइंग टू मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इन पास्ट सिंपल अफर्मेटिव, तो ऑब्जेक्ट कम्स इन स्टार्ट, देन वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट. For negative sentence, subject plus did not plus verb की first form plus object is for the active sentence. And negative and passive we use object plus was were not verb की third form plus by plus subject. For interrogative sentence in active, did comes in start, did plus subject plus verb की first form plus object for the active sentence. And for passive sentence was were start में आ जाएगा plus object plus verb की third form, then we use why and subject. So these are structures. How can we transfer and how can we convert a sentence from active to passive voice? Now look at some examples. The first example is I wrote a letter. मैंने ख़त लिखा. A letter was written by me. ख़त लिखा गया. लेटर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है सेंटेंस में. लेटर स्टार्ट में आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है. A letter was written by me. She won the match. वो मैच जीत गई. The match was won by her. मैच जीता जा चुका है, मैच जीता गया. Here in the passive sentence we have importance of match. That's why we have taken it as a subject. Ali did not complete homework. अली ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया. Homework was not completed by Ali. काम मुकम्मल नहीं किया गया. In this sentence we have importance of homework. That's why we are emphasizing on it. Zara didn't read the lesson. Zara ने सबक नहीं पढ़ा. The lesson was not read by Zara. सबक नहीं पढ़ा गया. In active sentence we have importance of subject that Zara ने सबक याद नहीं किया. But in passive sentence the importance of lesson has been increased. सबक याद नहीं किया गया. So these are some sentences. Now look at more examples. Did you drive a car? क्या तुमने गाड़ी चलाई थी? Now the importance of subject is here in the sentence we can see it. In passive sentence, was a car driven by you? क्या गाड़ी चलाई गई थी? Now we are giving importance to a car. Did they eat food? क्या उन्होंने खाना खाया था? Was the food eaten by them? क्या खाना खाया गया था? The teacher punished me. मुझे उस्ताद ने सज़ा दी. Means मैं यहाँ पर टीचर को बता रही हूँ कि टीचर ने मुझे पनिश किया. And in passive sentence, I was punished by teacher. मुझे सज़ा दी गई. Now, I am focusing on myself कि मुझे सज़ा दी गई. Children teased their parents. बच्चों ने अपने वालिदैन को तंग किया. The parents were teased by their children. वालिदैन को तंग किया गया. In active sentence we have importance of children, but in passive sentence the importance of parents have been increased. If we have to make sentence in continuous, how can we make sentences in past continuous in passive voice? So here are some formulas and structures that how can we make differences and changes from active voice to passive voice. First, when we have to make affirmative sentences in past continuous, the formula of active voice is subject plus was verb plus verb की first form ing and object.
इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट. फॉर नेगेटिव subject plus was were not verb की first form ing in object. In passive object was were not being verb की third form by subject. For interrogative was and were start में आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा. सेम पैसिव वॉइस में भी was and were स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा. Now look at some examples. I was writing an essay. मैं मज़मून लिख रहा था. An essay was being written by me. was and being आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. मजमून लिखा जा रहा था. किड्स वर प्लेइंग क्रिकेट. बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय किड्स. क्रिकेट खेला जा रहा था. In this sentence, in passive sentence, we have importance of cricket. That's why we have taken it as a subject. She was baking a cake. वो केक बना रही थी. The cake was being made by her. केक बनाया जा रहा था. Teachers were taking exams. उस्ताद एग्ज़ाम्स ले रहे थे. The exams were being taken by teachers. एग्ज़ाम्स लिए जा रहे थे. I was not writing an essay. मैं मज़मून नहीं लिख रहा था. For negative, an essay was not being written by me. मज़मून नहीं लिखा जा रहा था. Kids were not playing cricket. बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. Cricket wasn't being played by kids. क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था. अब देखिए एक्टिव सेंटेंस में किड्स वर, किड्स प्लूरल है तो वर यूज़ हुआ, जबकि पैसिव सेंटेंस में क्रिकेट सिंगुलर है तो वॉज यूज़ हुआ है. सो बी केयरफुल वाइल पुटिंग हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. वॉज शी बेकिंग अ केक. क्या वो केक बना रही थी. इंटरोगेटिव सेंटेंस. वॉज द केक बीइंग मेड बाय हर. क्या केक बनाया जा रहा था. वर टीचर्स टेकिंग एग्ज़ाम्स. क्या उस्ताद इम्तहानात ले रहे थे. Were the exams being taken by the teachers? क्या इम्तहानात लिए जा रहे थे. नेगेटिव के लिए was and were स्टार्ट में आ जाएगा. and all the sentence remains the same. Now, if we have to make passive voice in past perfect, how could we make it? Here are the structures in active voice and passive voice. हम active से passive voice में क्या structure में changes करते हैं. So look at it. Subject plus had verb की third form and object. Active के लिए past perfect के ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट. पैसिव के लिए फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. एक्टिव में और पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. एक्टिव में इंटरोगेटिव में हैड स्टार्ट में आ जाएगा. पैसिव में भी इंटरोगेटिव में हैड स्टार्ट में आ जाएगा और बीन अपनी ही प्लेस पर रहेगा. तो एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस परफेक्ट में बनाना बहुत आसान होते हैं क्योंकि सेम हेल्पिंग वर्ब फॉलो हो रहे होते हैं. जस्ट वी हैव टू ऐड द बीन इन पैसिव वॉइस. वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में भी होती है. सो हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती हैं. जस्ट वी नीड टू पुट द बीन आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स. आई हैड वॉच्ड न्यूज़. मैं खबरें देख चुकी थी. News had been watched by me. खबरें देखी जा चुकी थी. Look at here. Had in passive voice and active voice. Watched in passive voice and active voice. We just added been in passive voice. We had celebrated party. हम पार्टी मना चुके थे. Party had been celebrated by us. पार्टी मनाई जा चुकी थी. Grandpa had given gifts. Grandpa gifts दे चुके थे. Gifts had been given by grandpa. Gifts दिए जा चुके थे. The kids had eaten all the cake. बच्चे तमाम के तमाम केक खा चुके थे. The cake had been eaten by kids. केक खाया जा चुका था. So past perfect या perfect में passive बनाना बहुत आसान है. Now look at some negative and interrogative sentences. I hadn't learned English. मैंने English नहीं सीखी. मैं English नहीं सीख चुकी थी. English had not been learnt by me. English नहीं सीखी गई. They hadn't bought new clothes. उन्होंने नए कपड़े नहीं खरीदे. New clothes had not been purchased. नए कपड़े नहीं खरीदे गए. Had he told Sarah's truth? क्या वो सारा का सच बता चुका था. Had Sarah's truth been told by him? क्या सारा का सच बताया जा चुका था. Had she washed clothes? क्या वो कपड़े धो चुकी थी. Had the clothes been washed? क्या कपड़े धोए जा चुके थे. तो परफेक्ट के अंदर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेम होता है. वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में यूज़ हो रही होती है.
बस हमें बीन का इजाफा करना होता है। सो ये इस वीडियो के अंदर पास्ट में पैसिव वॉइस बनाए गए, जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, इनके रूल्स, इनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए गए। सो आई थिंक नाउ इट इज़ ईजी कि हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, किन रूल्स को फॉलो करते हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं। आज पास्ट के हमने तमाम पैसिव सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं। कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग विद अस। थैंक्स फॉर लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।